شخصیت موجود ہے جناب مجیب خان صاحب، ان سے درخواست کرنا چاہوں گا، اسی کے ساتھ ساتھ تمام مہمان جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے ان تمام سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ کی کتاب کا اجرا کریں۔ میں احمد نگر سے تعلق رکھتا ہوں، راؤ کی زمین سے آیا ہوں، آپ شہر کے لوگ ہیں، 4 مصرے جو ہے ابھی میرے نظر کے سامنے ہیں، میں سیدہ کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ تمہارے گاؤں، ہمارے گاؤں میں شاید محبت کا چلن ہوگا، تمہارے شہر میں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا، تمہارے گاؤں میں پتھر بھی ہے انمول شے لیکن ہمارے شہر میں ہیرا کوئی ہیرا نہیں ہوتا۔ ہمارے درمیان نظامت کے امام عاصم امام صاحب موجود ہے، بہت ہی اردو ادب کی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ ہم جیسے نو مشق آپ کی شاعری سے، آپ کی نظامت سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں سر۔ اسی کی طرح یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام مہمان میرے لیے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، دوران نظامت اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو میں آپ سے معافی چاہوں گا۔ آئیے حضرات، اس کتاب پر تبصرے کے لیے ہمارے درمیان ایک معزز شخصیت موجود ہے، ڈاکٹر ذاکر خان سر، جو ادیب ہے، شاعر ہے۔ میں ان کو شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا کہ جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوگا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ذاکر خان اور السلام علیکم اور ڈاکٹر تبسم، آپ کا صاحبہ کی کتاب کا اجرا اس تعلق سے پروگرام رکھا ہوا۔ تبسم ناٹک کی کتاب مجموعہ کلام کلیاں احساس، اس پر بطور تبصرہ میرا لکھا ہوا مضمون بعنوان حدیث دل۔ نسوانی شاعری میں شاخ محبت پر ٹھہرے ہوئے الفاظ جب غنائیت سے لبریز جذبات و احساسات کا لبادہ اوڑھے کرتاس ابیض پر جلوہ گر ہوتے ہیں، تب احساسات کی کلیاں کھل کر گلہائے رنگارنگ کا روپ دھار لیتی ہیں اور مختلف عنوانات اور موضوعات کے سہارے دیار دل سے دیار یار تک ہر آنگن کو مشک بیز کر جاتی ہیں۔ یہی جذبات و احساسات شاعری کی روح بھی ہیں اور اساس بھی، یہی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ اسی کے سہارے شعر لافانی اور شاعر جاویداں ہو جاتا ہے۔ ماضی میں شاعری پر ایک دور ایسا بھی آیا جب یہ روایات دم توڑتی نظر آئیں۔ 18ویں صدی میں یورپ میں تعقل پسندی نے اپنی راہ ہموار کر لی اور لوگ جذبات کی دنیا سے دور ہوتے چلے گئے، احساسات سے ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ تب شعراء و ادبا کو خیال آیا کہ زندگی اور اس سے وابستہ چیزوں میں اتنا نظم و ضبط نہیں ہے جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ وہ جس طرح زندگی کو مربوط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ زندگی کی حقیقت نہیں ہے، لہذا انہوں نے ریجیمنٹیشن کے سسٹم کو بالائے طاق رکھ کر اس کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اس وقت کے اہم شعراء میں ورڈسورتھ، بائرن، کیٹس، شیلی وغیرہ نے جذبات کی دنیا میں پناہ لی اور یہی دنیا انہیں حقیقت کے قریب تر نظر آئی۔ انسانی محبت، جذبات، احساسات اور جنس نے ان کی شاعری کو ریئلسٹک ٹچ اور حقیقت پسندانہ نظریہ فراہم کیا۔
اس کے نتیجے میں شاعری سے دور ہوتی ہوئی عوام شاعری سے قریب تر ہوتی چلی گئی، ہیرو ورشپ کا دور ختم ہوا اور عام جذبات شاعری میں پورٹریٹ ہونے لگے۔ اردو شاعری میں اختر شیرانی اور ان کے کچھ معاصرین بھی اسی راہ پر چل پڑے۔ اس طویل تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس راہ کو سمجھ لیں جو اختر شیرانی سے تبسم ناٹکر تک کلیاں احساس کی بکھیرتے ہوئے پہنچی ہیں۔ تبسم ناٹکر ماضی کی دیکھی بھالی اور حال سے وابستہ جن راہوں پر احساس کی کلیاں لٹاتے ہوئے مستقبل کی جانب رواں دواں ہے، ان راہوں پر جذبات و احساسات کے ماں سوا کچھ بھی نہیں۔ ان راہوں پر کئی موڑ، کئی منزلیں، کئی پڑاؤ آئے ہیں، انہیں ہم یاد، یاس، یار، ماضی، حال، مستقبل، وصال، ہجر، انتظار اور نثری، آزاد اور پابند نظموں کے خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تبسم ناٹکر کا پورا شہری سفر وادی محبت سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ اس وادی کے گل و خار سے بخوبی واقف ہے۔ اس نے اسی وادی میں پھولوں کی مہک اور کانٹوں کی چبھن محسوس کی ہے۔ یہی اس کے شب و روز گزرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجموعہ کلام میں شیرینی بھی ہے اور برشی بھی، آس بھی ہے اور یاس بھی، امید بھی ہے اور نا امیدی بھی، ہجر بھی ہے اور وصال بھی، اقرار بھی ہے اور انکار بھی، اعتراف بھی ہے اور شکوہ بھی، یاد بھی ہے اور فراموشی بھی، مجاز بھی ہے اور حقیقت بھی، شدت جذبات بھی ہے اور رائگانی جذبات بھی، تلاطم بھی ہے اور ٹھہراؤ بھی، خود فراموشی بھی ہے اور تعلی بھی۔ یوں محسوس ہوتا ہے شاعرہ نے دل کے معاملات میں پاسبان عقل سے کم کم ہی کام لیا ہے۔ کہ یوں محسوس ہوتا ہے شاعرہ نے دل کے معاملات میں پاسبان عقل سے کم کم ہی کام لیا ہے، لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقبال تعقل اور جذبات دونوں کے قائل تھے اور یہی دونوں عناصر شاعری میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ اقبال اور غالب اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ نظموں پر مشتمل تبسم ناٹکر کا مجموعہ کلام کلیاں احساس کی از اول تا آخر نسوانیت کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ کور پیج کی کلر اسکیم ہو یا اندرونی صفحات پر آراستہ و پیراستہ نظمیں، ہمیں ہر جگہ یا حرف در حرف نسوانیت اپنی موجودگی کا اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ستمبر 1959 میں ایم ایل روزنتھل نے رابرٹ لویل کے مجموعہ کلام پر اپنا تبصرہ تحریر کرتے ہوئے محسوس کیا کہ لویل کی شاعری ذاتی جذبات، نفسیاتی کشمکش، روزمرہ کی نااتفاقیاں، حقیقی واقعات، حقیقی افراد، تجربات محبت، احساس لمس اور وصال و ہجر کے لمحات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تب اس نے اس طرح کی شاعری کے لیے ایک نئی اصطلاح کنفیشنل پوئٹری کا استعمال کیا۔ دھیرے دھیرے یہ اصطلاح رائج ہوتی چلی گئی۔ رابرٹ لوویل، سلویا پلاث، کملا داس، اینی سیکسٹون وغیرہ نے اپنے ذاتی تجربات و احساسات کا شاعری میں اس حد تک استعمال کیا کہ انہیں کنفیشنل پوئٹس کہا جانے لگا۔ ان شعراء نے چار دیواری میں پیش آنے والے ذاتی نوعیت کے تجربات کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دے دی۔ احساسات اور جذبات کی برہنہ گفتاری کا بالکل بھی خیال نہ رکھا۔ تبسم ناٹکر کا مجموعہ کلام کلیاں احساس کی کنفیشنل پوئٹری کے زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہماری اس شاعرہ کے یہاں جذبات و احساسات تو ہیں، لیکن مخصوص پردہ داری کے ساتھ۔ اس کے یہاں جذبات و احساسات کی وہ برہنہ گفتاری نہیں ہے جو مذکورہ والا شعراء و شاعرات کے یہاں موجود ہے۔ اس کے برعکس تبسم ناٹکر اپنے احساسات کو انتہائی دلاویز طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب نظر آتی ہیں۔
یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نظمیں جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں غزلیہ شاعری میں میر، غالب، مومن، ذوق اور اقبال سے لے کر عصر حاضر کے شعراء تک خود ستائشی کا جذبہ شاعرانہ تعلی کی صورت میں نظر آ ہی جاتا ہے۔ اس سے لاکھ بچنے کی کوشش کی جائے لیکن یہ جذبہ کہیں نہ کہیں ضرور وارد ہوتا ہے۔ میر کہتے ہیں کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ یا غالب نے کہا تھا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور مومن نے کہا تھا کہ ایسی غزل کہی ہے کہ جھکتا ہے سب کا سر، ایسی غزل کہی ہے کہ جھکتا ہے سب کا سر، مومن نے اس زمین کو مسجد بنا دیا۔ وہ کہ تبسم ناٹکر کا مجموعہ کلام نظموں پر مشتمل ہے، لیکن اس سے بھی اس طرح کے جذبات سرزد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 21 کی نظم احساس، صفحہ نمبر 44 نظم محبت، صفحہ نمبر 69 نظم میں تو بس محبت ہوں، اور صفحہ نمبر 85 نظم چراغ۔ اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ میں نظم کی مثالیں دینے کی بجائے صفحات نمبر کیوں بتا رہا ہوں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کتاب خریدیے، کتاب پڑھیے اور پھر محسوس کیجیے کہ ان صفحات پر کیا ہے۔ بات اگر محبت کی ہو تو وہ یاد، یاس اور آس تک جا پہنچتی ہے۔ یاد جب حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ نوسٹالجیا کا روپ دھار لیتی ہے۔ اس قسم کے جذبات نظموں میں زیادہ، اس قسم کے جذبات نظموں سے زیادہ افسانوں میں نظر آتے ہیں۔ انتظار حسین کے کئی افسانے نوسٹالجیا کا شاہکار معلوم ہوتے ہیں۔ انتظار حسین بذات خود نوسٹالجیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اسے اقبال کی زبان میں آتش رفتہ کا سراغ کہوں گا۔ تبسم ناٹکر بھی اپنی نظموں میں کہیں ماضی کی باتوں کو یاد کرتی ہیں، کہیں ماضی کو زندہ رکھنا چاہتی ہے اور کہیں ماضی کو حال سے بہتر سمجھتی ہے۔ اس کے ذیل میں صفحہ نمبر 32 نظم یادیں، صفحہ نمبر 89 نظم یادوں میں صرف تمہاری یاد کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ جہان محبت میں یاسیت سے دامن بچا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہے۔ یاسیت روز آفرینش سے ہی اولاد آدم کی میراث رہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ تبسم کی چشم زار زار اور دل تار تار یاسیت کا شکار معلوم ہوتا ہے۔ اسے دکھ ہے کہ آرزو مند آنکھیں، نوید طلب دل اور دعاؤں کو اڑتے ہوئے ہاتھ بے ثمر ہو گئے۔ بچھڑ جانے کا کرب، سنسار میں کھو جانے کا دکھ، انتظار یار میں ساون بیت جانے کا غم، خواہشات پر چھائی ہوئی مردنی اور قسمت کے ستارے کا غروب ہو جانا تبسم کی شاعری میں بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذیل میں صفحہ نمبر 20 نظم بچھڑ جائیں گے ایک دن ہم، صفحہ نمبر 36 نظم یہ سوچتی رہتی ہوں، اور صفحہ نمبر 41 نظم سناٹا، صفحہ نمبر 59 نظم ستارہ دیکھی جا سکتی ہے۔ تبسم ناٹکر کے مجموعہ کلام میں نثری نظمیں بھی شامل ہیں۔ یہ اس کا اپنا پیرایہ اظہار ہے۔ جس طرح شاعر نے محسوس کیا اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ نثر ہے اور نظم ہے۔ نظم کے اپنے اصول و ضوابط ہیں اور نثر کی اپنی میزان ہے۔ شاعری کے تقاضے جدا ہیں اور نثر کے تقاضے الگ۔ نثر بالکل واضح اور صاف ستھری ہوتی ہے، جبکہ شاعری علامتوں کے سہارے اپنا سفر طے کرتی ہے۔ 80 کی دہائی میں نثری نظموں کا تجربہ کیا گیا، لیکن اسے کوئی خاص کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ تبسم ناٹکر کے لیے ایک مشورہ ہے کہ وہ پابند، آزاد اور معرہ نظمیں بآسانی اور بہتر طور پر کہہ سکتی ہیں۔ تبسم ناٹکر کے یہاں مذکورہ والا خصوصیات کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو قارئین کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ عصر حاضر کی شاعرہ ہیں اور عصر حاضر میں انسان غم روزگار، جنگ و جدل،
फसादात और मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों से जूझ रहा है। इस नामुख्तबे दौर में अगर कोई शख्स जज्बात और एहसासात के सहारे एक नया अहदनामा तैयार करता है, खुशी, सुकून, अमन, मोहब्बत, नेचर और रिश्तों की बात करता है, तो वो यकीनन लायक सद एहतराम और दर हकीकत हमारे अहद का नवाज और हमदर्द है। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब जाकिर खान साहब जो कलिया एहसास की इस किताब पर तबसरा फरमा रहे थे। किसी किताब पर तबसरा करना पुल सिरात पर चलने के माने है। मैं समझता हूँ कि जाकिर सर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सैयदा तबस्सुम साहिबा की किताब जो है उसकी पजीराई की है, उसमें आपको मशवरे भी दिए हैं। जब वो किताब का तबसरा कर रहे थे कासिम साहब के, दो चीजें मेरे जहन में क्या आ गई। यहाँ पर एक चीज देखने में आई है, अगर हम आवाज ना करते हैं, हमारी जबान पे जब किताब कोई शाये होती है उसका इजरा होता है, तो एक चीज ये होती है कि जैसे उन्होंने मशवरा भी दिया कि आप किताब खरीदिए और पढ़िए। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आज मैं समझता हूँ 10 से 12 तंजीम के जो है सदर है, उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद है कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे उर्दू अदब में बहुत सी किताबें छप रही है, बहुत किताबें शाये हो रही है, लेकिन खरीदारी का जो एक अहम मसला है, जो हम किताब तो क्या, आज अखबारों की जो नौबत है, यहाँ पर एडिटर साहिबा भी मौजूद है, फारूक सैयद साहब मौजूद है, मुशीर अंसारी साहब है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो सब जानते हैं। तो ये तंजीमों की अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी जबान की हिफाजत करना, हम मुशायरे की हद तक या किसी कॉन्फ्रेंस की हद तक महदूद ना रहे, बल्कि एक किताब, ये जो किताबें शाये हो रही है, इनकी खरीदो फरोख्त का जो मामला है, इसको किस तरीके से अमली जामा पहना है, इसकी जरूरत है। दूसरा सवाल एक जहन में ये आया मेरे, यहाँ पर दानिश्वर बैठे हुए हैं, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ। इस दौर में मैं समझता हूँ, इस दहाई में खुसूसी तौर से हसन साहब कि जितनी किताबें शाये हो रही है वो तो शायद से किसी दूसरे दौर में नहीं हुई होगी। आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, लेकिन हमारी जितनी किताबें जिस रफ्तार के साथ शाये हो रही है, एक सवाल एक जहन में मैं आप तमाम के छोड़ना चाहूंगा, क्या हमने हमारी नई नस्लों को उन किताबों के मुताले के लिए तैयार किया है? ये एक सबसे बड़ा हमारे सामने एक मसला है। क्या हमारे नौजवानों को, क्या हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको किस तरीके से हम मश्क कराएं, किस तरीके से मुताले का ज़ौक़ कराएं, किस तरीके से हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अपने अपने इलाकों में, हमारी जो तंजीम है यहाँ पर तमाम अफराद से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो इनामों के ज़रिए हो, चाहे वो किसी ज़रिए हो, आप तमाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी काम करते हैं। हमारे फारूक सैयद साहब जो है बहुत बच्चों के लिए, बच्चों का अदब है, तो हमें हमारी आने वाली नस्लों को जो है इन किताबों के मुताले की तरफ भी ले आना है। आइए हजरात, जिस मोतबर शख्सियत का यहाँ पर तस्करा हुआ, उनके ताल्लुक से चंद बातें बताता चलूँ कि सैयदा तबस्सुम साहिबा के वालिद साहब का नाम सैयद इकबाल अहमद है। उन्हीं के नाम से जो है आपने जो है इकबाल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की आज जो है आप तमाम की शहादत पे बुनियाद रखी। आप कई तंजीमों के मेंबर्स हैं, खास तौर से आज जो तंजीमें यहाँ पर जो है मदू की गई है, जिनको एजाज किया जाएगा उनके अराकीन का, आप इन तमाम तंजीमों से, इन तमाम वज़नों से जो है आप जुड़ी हुई है। उसी के साथ साथ आपको 2021 में गुफ्तगू इलाहाबाद से अकबर इलाहाबादी अवार्ड, 2022 में डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन से मीडिया अवार्ड, 2022 में रत्नागिरी से साहिर शेवीपुर अवार्ड, राष्ट्रीय गजल का संगीत गाजियाबाद, उसी के साथ साथ गुफ्तगू से फिराक गोरखपुरी अवार्ड, मौजे सुखन कराची की तरफ से फातिमा सुरैया अवार्ड और मीरठ यूनिवर्सिटी से, और इसी तरीके से बहुत सारी साहित्य परिषद से, उर्दू अकेडमी से और न जाने कितनी तंजीमों से इनको अवार्ड दिन ब दिन मिलते रहते हैं। हम तमाम जो है
यहाँ पर तमाम हाजरीन की जानिब से और मैं अपने ذاتی طور से भी सैयदा तबस्सुम साहिबा को और आपके तमाम अहले खाना को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने एक मिसाल कायम की है। आप जिस तरीके से उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके इल्म में आपकी जो है बरकत अता फरमाए और आप जिस तरीके से तंजीम का काम कर रही है, आप अल्लाह ताला जो है उसको कबूल फरमाए, इखलास के साथ जो है उसको करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं इस शेर के साथ आपको बुलाना चाहूँगा और आपसे दरख्वास्त ये करना चाहूँगा कि आप इकबाल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के अगराज व मकासिद और उसी के साथ साथ कलिया एहसास की, इन दोनों बातों पर जो है रोशनी डाले कि मुझे एक जहन में जो शेर ये आया कि तबस्सुम साहिबा के लिए आपको दावत देने जा रहा हूँ इस शेर के साथ कि एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद है। सैयदा तबस्सुम साहिबा। तमाम मोतबर शख्सियात और मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तंजीम मैंने क्यों बनाई, तो मैं उसके बारे में आपको बताती चलूँ कि हम चार दीवारी में बैठकर उर्दू की बातें करते हैं। आने वाली नस्ल को हम किस तरह तैयार करें, उनके लिए प्लेटफॉर्म किस तरह दें। तो मेरा एक छोटा सा ये कदम है कि जो बच्चे लिख रहे हैं, नए बच्चे जो लिख रहे हैं, मज़ामीन लिख रहे हैं, अफसाने लिख रहे हैं, गज़लें लिख रहे हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मैंने एक कदम उठाया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आने वाले बच्चों को, नई नस्ल को ये प्लेटफॉर्म दूँ। और जैसे हम खेतों में बीज बोते हैं, वो एक फसल तैयार होती है, उसके बाद हम दूसरी बार बीज बोते हैं तो दूसरी फसल तैयार होती है। तो हमें भी यही करना चाहिए कि एक फसल खत्म होने से पहले या उसको काटने से पहले हम दूसरी फसल तैयार करें, ये हमारा फर्ज है। तो मैंने ये छोटी सी कोशिश की है कि इस दिए को बुझने से पहले मैं नए दिए को रोशन करती चलूं, और मेरा यही मकसद है। अब तंजीम सैयद इकबाल अहमद के नाम से क्यों बनाई गई, ऐसा क्या है उसमें सैयद इकबाल के नाम में कि उनके नाम से ये तंजीम बनाई गई। तो ये तंजीम, मेरे अब्बा का नाम तो अभी मुनव्वर ने बताया, सैयद इकबाल अहमद है, और वो जो थे मैसूर से ताल्लुक़ रखते थे, कर्नाटक से। हम जो है वो सैयद हैं, सादात हैं, अहले बैत हैं, हमारा शजरा भी है, और हमारा सिलसिला जो है हजरत अली से जाकर मिलता है। ये सबसे बड़ा उनका पहले एक वो है। दूसरी बात कि मेरे अब्बा जो है वो तालीम और तदरीस से जुड़े हुए थे, उनका बहुत वक्त जो है तालीम और तदरीस में गुजरा है। और इसी महीने की जमादिल अव्वल, इसी महीने की 23 तारीख को उनको 15 साल पूरे हुए हैं, पर्दा किए थे। मुझे ये तंजीम बनाने में 15 साल लगे, उनके बाद उनके मिशन को लेकर जाने में मुझे 15 साल लगे। लेकिन खैर जब वक्त आया, अल्लाह ने मुझे जब मौका दिया, मैं उस मौके को गनीमत समझकर मैं उनके मिशन को ये आगे लेकर जा रही हूँ। मैं एक शेर उनके लिए कहती हूँ
وہ تپتے صحرا زندگی نہ تھی مشکل ساتھ وہ تھے جب میرے زندگی نہ تھی مشکل ساتھ وہ تھے جب میرے وہ تپتے صحرا میں سائبان جیسے تھے. میرے والد کی زندگی تعلیم اور تدریس میں گزری. انہوں نے قوم و ملت کے بچوں کی سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل میں اپنا اہم کردار نبھایا. وہ اپنے معاشرے میں تعلیم کے فروغ اور اپنی تہذیب اور ثقافت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے. ان کا خواب تھا کہ وہ بچوں کی تعلیم کے لیے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرے. انہوں نے تعلیم النسواں پر بھی خصوصی توجہ دی اور انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم سے نوازا. ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی تعلیمی ادبی مشن کو ان کے آگے بڑھائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا. میں نے ادب اور میدان میں اپنا کام شروع کیا اور شروع ہے اور انشاءاللہ رکھوں گی. ہم 6 بیٹیوں میں سے مجھے اس خاکسار کو موقع ملا ہے کہ میں ان کے مشن کو آگے بڑھاؤں. ایک شعر میں پڑھتی ہوں. تمہاری ہی بدولت ہے یہ جو بھی ہے کام میرے تمہاری ہی بدولت ہے یہ جو بھی ہے کام میرے ادب و تہذیب اور تعلیم کے میدان میں ہے سارے تمہاری ہی بدولت ہے یہ جو بھی ہے کام میرے. وہ ہر کسی سے حسن اخلاق اور عمدہ پیشانی سے ملتے تھے. ان کے سامنے کوئی بھی ہو جب وہ لکھتے تو لگتا تھا جیسے انہوں نے کاغذ پر وہ بھی لکھے دیے ہوں. جب وہ بات کرتے تھے اتنی شیرین اور نفیس اردو بولتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہوں. اور بہت ہی اعلیٰ عمدہ شخصیت تھی. ان کا چلنا ان کا پھرنا ان کا بیٹھنا ان کا اٹھنا کئی بچوں کے اس وقت وہ ماڈل رہے ہیں. اور اس وقت فجندار ہائی اسکول شاید سے میں جہاں تک جانتی ہوں فجندار ہائی اسکول ہی ایک اسکول تھا. رتنا گری تک کوئی اسکول نہیں تھا. تو کوکن سے لے کر رتنا گری تک میرے ابا کو لوگ جانتے ہیں جو حاضر ہے. میرے خیال سے یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بھی نہیں جانتا. صرف ایک رؤف انکل ہے جو ان کو جانتے ہیں اور وہ آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے. اور جتنا وہ دینی معاملات دنیاوی معاملات میں مطلب وہ آگے تھے اتنا ہی وہ دینی معاملات میں بھی تھے. جب فجندار ہائی اسکول چھوڑ کر وہ چلے گئے 1975 میں اس کے بعد وہ گئے جدہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی. وہاں بھی انہوں نے اپنی تعلیمی خدمات انجام دی اور میرے خیال سے وہ وہاں پر 23 یا 24 سال رہے. اس میں سے انہوں نے 21 بار حج کیا اور عمرہ کی کوئی تعداد نہیں ہے. مطلب ہر جمعہ وہاں پر عمرہ کرتے تھے وہ تو اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. اور آپ تعلیم پر دین پر آپ ان سے کبھی بھی کوئی بھی سوال کریں تو اس کا جواب ان کے پاس موجود ہوتا. ایسی شخصیت کے بارے میں اب آپ سوچیں گے دیکھی ہے تو آپ تو کہیں گے ہی. لیکن میں نے کئی اسٹوڈنٹ کو بلایا تھا ان کے پر وہ نہیں آ پائے. جو میرے بچپن کے دوست بھی تھے منصور جٹام میں نے ان سے کہا تھا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اقبال سر تو میرے آئیڈیل تھے. میں ان کی طرح سوٹ پہنتا تھا میں ان کی طرح چلتا تھا میں ان کی طرح بولتا تھا. تو میں بولی تم آؤ ذرا کچھ ان کے بارے میں بتاؤ. تو شاید وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پائے. بس میں نے ان کی یہ خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. سب کچھ ہے آج میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اور وہ کسی نہ کسی طرح میرے ساتھ روحانی طور پر جڑے ہوئے ہیں آج بھی. اس میں سے کئی لوگ ہی جانتے ہوں گے. یہ روحانی جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے.
لیکن روحانی طور پر مجھ سے آج بھی وہ جڑے ہوئے ہیں. مجھے کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے, مجھے کوئی بھی میں غلط کام بھی کرتی ہوں تو مجھے آ کر وہ مجھ سے صلاح کرتے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں, یہ تم نے غلط کیا, یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. لیکن وہ یہاں پر میرے سامنے نہیں. میں نے آج ان کی خواہش کو, ان کی تمناؤں کو پورا کرنے کی بہت کوشش کی ہے. مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا ہے, لیکن ان کے بنا سب کچھ ادھورا ہے, سب کچھ ادھورا ہے. میرے تمام اعزازات, میرے تمام سب کچھ آج میں ادھورا محسوس کرتی ہوں, کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ کچھ وہ ایسا, میری بچیاں کچھ ایسا کرے کہ میرا نام روشن ہو. اور کبھی بھی ہمیں انہوں نے لڑکیوں کی طرح نہیں پالا, ہمیشہ لڑکوں کی طرح ہی ہر کام کرنے کی ہمیں تلقین کی کہ آپ ہر کام کر سکتے ہو اور ہر کام کرو آپ. تو میں ایک شعر کہتی ہوں, گئے وہ چھوڑ کر جب سے مجھے اس دار پانی سے, گئے وہ چھوڑ کر جب سے مجھے اس دار پانی سے, ادھوری ہے خوشی بیکار یہ انعام ہے میرے. ان 15 سالوں میں کبھی بھی دور نہ ہوئی تو میں ایک اور شعر ہے ان کے لیے. اسی لمحہ تمہاری جب کمی محسوس کرتی ہوں, اسی لمحہ تمہاری جب کمی محسوس کرتی ہوں, اسی پل اپنی پلکوں پر نمی محسوس کرتی ہوں. بہت شکریہ. ان کے حق میں یہ میرا چھوٹا سا قدم ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. اور میں نے یہ جو کام شروع کیا ہے ان کے حق میں, وہ اس کام کو میں پورا کر سکوں. آپ سب میرے ساتھ رہیں اور آپ سب کی دعائیں, آپ سب کا ساتھ میرے لیے ضروری ہے. کیونکہ کوئی ایک تنظیم بناتا ہے تو اس کی اکیلے کی وہ تنظیم نہیں ہوتی, اس کو سب کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑتا ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب میرے ساتھ رہیں تاکہ میں آنے والی نسلوں کو کچھ دے سکوں, تیار کر سکوں. آنے والی جنریشن ہمارے بعد, ہمارے جو ہم یہ مشاعرے کر رہے ہیں, ہم افسانے پڑھ رہے ہیں, افسانوی نشستیں کر رہے ہیں, تو ہمارے بعد کوئی تو ہو, کوئی تو ان چیزوں کو کرے. میرا یہ مقصد ہے کہ ہمارے بعد ہم ایک اپنے سے, اب ہم یہاں سب بیٹھے ہیں تو ہم سے ایک ایک دیا روشن بھی ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. تو میری سب سے درخواست ہے کہ آپ سب میرے ساتھ رہیں. اب رہی کنیا احساس, اس پر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر ذاکر سر نے اتنا تفصیل سے بتایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بولنے کی اس پر ضرورت نہیں ہے. میں صرف اس میں سے ایک نظم پڑھوں گی. پہلی نظم ہے, 13 نمبر پیج پر ہے. پھر اٹھی کنیا احساس کی, آندھیاں وہ چلی وقت کی, ہے گئے زندگی کے شجر, اور ویران ہوئے آرزوؤں کے چمن. یہ تباہی کے منظر ادھر دیکھیے, کوئی امید باقی نہ تھی زندگانی سے. اب چادر غم کو اوڑھ کر سو گئی خواہشیں, ایک کرشمہ ہوا ابر بن کر کوئی آ گیا, چھا گیا زندگی کے فلک پر میرے. دل کی ویراں زمین پر یوں برسا وہ ابر, خواہشوں پر بہار آ گئی. کھل اٹھے آرزو کے چمن, مخمل امید کی جاگ اٹھے سرزمین بدن پر میرے. پھر شادابیاں رقص کرنے لگے. اشارہ کر رہے ہیں ان کی طرف, تو اشارہ تو انہی کی طرف ہے کیونکہ اس کتاب پر میں نے انہی کا فوٹو لگایا ہے. کنیا احساس کی, جس نے احساس, انتصاب بھی میرے محبوب کے نام ہے. میرا محبوب میرے شوہر بھی ہے, میرا اللہ بھی ہے. اور تو
ये इंतसार उनके नाम से है, ये किताब उन्हीं के नाम पर है और सारे एहसासात जो मेरे हैं उन्हीं के लिए है। और उन्होंने भी इसमें मेरे लिए 2 नज़में लिखी हैं। उन्होंने भी कोशिश की है कि थोड़ा बहुत कुछ मेरे लिए लिखे, तो बहुत बोलने के बाद उन्होंने लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरी बहुएं, मेरी बेटी और मेरे अभी जो पढ़े वो पोती थी, नवासी थी, सभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ चलते हैं और उनका मुझे साथ है। मेरे दामाद, सब लोग, मैं अपने तीनों, मेरे बच्चे जो पीछे खड़े हैं, तीनों खड़े हैं, मेरे दामाद, मेरे बेटे, दोनों बेटे और मैं, बहू में भी है, बेटी भी है, सब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये परिवार जो है मेरा एक छोटा सा गुलशन है और मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती। मैं इसे गुलशन के इतराफ जो है ना, जो भी लिखना है, जो भी पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी में लिखती हूँ। और मेरे शौहर की मुझे कभी भी किसी तरह की पाबंदी नहीं है। उन्होंने मुझे बेतकल्लुफ होके, इस आप किताब में अगर पढ़ेंगे तो मैंने बेतकल्लुफ होके मेरे एहसासात को मैंने लिखा है और उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि आप ये क्यों लिखती हो, ये ऐसा क्यों लिखती हो, वैसा क्यों लिखती हो, कभी भी मुझे उन्होंने नहीं कहा। तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे ये ज़िंदगी के सफ़र में मेरा साथ दिया और इंशाअल्लाह आगे भी देते रहे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहें। वो मेरे साथ रहे तो मेरे सर पर छत है, मेरे सर पर साइबान है। ये मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, 6 महीने हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि आज वो चलते रहे। आखिर में मैं अपनी एक बात शेयर से खत्म करती हूँ। दुआएं साथ है मेरे माँ बाप की हरदम। दुआएं साथ है मेरे माँ बाप की हरदम। मैं हरगिज़ गिर नहीं सकती किसी के भी गिराने से। मैं हरगिज़ गिर नहीं सकती किसी के भी गिराने से। इसमें जितने भी मैंने शेर कोट किए हैं मैंने खुद ने लिखे हैं इस मौके के लिए। जितने भी 4-5 मैंने पढ़े इस मौके के लिए मैंने खुद ने लिखे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबका भी शुक्रिया अदा करूँ कि आप मेरी दावत को कबूल करके आप यहाँ तशरीफ आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सैयदा तबस्सुम मंजूर साहिबा, जिन्होंने अपने हालात ज़िंदगी का सफ़र, उसके नशे व फराज और वहाँ से लेकर उनका तालीमी सफ़र, अदबी सफ़र, तमाम जो है बातों का तस्करा यहाँ पर किया। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनके घर वाले जिस खुलूस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ उनके साथ जो उनका पार्टिसिपेशन होता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। एक राइटर के लिए, एक अदीब के लिए एक सपोर्ट है। वरना अक्सर देखने में ये आता है कि किसी राइटर के इंतकाल के बाद उसका जितना भी अदबी असासा होता है वो रद्दी के भाव फरोख्त कर दिया जाता है। यहाँ तक के साहिर लुधियानवी साहब की जो डायरी जो है वो भी आपकी बम्बई की किसी रस्सी की दुकान पे जो है इनकलाब ने उसको शायद किया था कि वो वहाँ पर भी। ये इस तरीके के हालात हो चुके हैं। तो किसी राइटर के साथ उसके घर वाले, उसके खानदान वाले जो खड़े हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा सैयदा तबस्सुम साहिबा को, उसी के साथ साथ मंजूर नाडकर साहब को। मंजूर नाडकर साहब जो है उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू है। वो एक बहुत अच्छे शोहर है, उसी के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे वालिद है। मैं अक्सर जो है देखता हूँ उनके बच्चों की तरबियत, उसी के साथ साथ वो जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब वो तंजीम बना रहे थे कासिम साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वाइस प्रेसिडेंट जो है इसका जो है ओहदा हम आपको देते हैं। मैंने कहा कि मैं एक तालिब इल्म
मेरी कोई उसमें ये नहीं है आप मुझे वाइस प्रेसिडेंट का कोई दे रहे हैं आप। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि मैं अहमदनगर में हूँ, आप मुंबई में हैं, इतने आपका एनजीओ रजिस्टर्ड, जब आप डॉक्यूमेंट्स मुझसे मंगा रहे थे तो उनके जो जुमले हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे सैयदा साहिबा के, कि हम चाहते हैं कि आप जैसे नौजवान जो है हमारे मिशन को आप आगे बढ़ाओ। ये एक बहुत अच्छी बात है कि नौजवानों को जो है तंजीम में साथ लेकर चले, उसकी रहबरी करे। यहाँ पर तमाम असातिज़ा मौजूद है, मैं उनसे भी दरखास्त करना चाहूँगा कि वो तमाम नौजवानों को अपने साथ लें। अब आइए, एक अजीम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जो वो उर्दू कारवा के साथ जो है पूरे हिंदुस्तान भर में सफर करते हैं। मैं खुद भी उस कारवा का हिस्सा हूँ और उसके मीर कारवा जनाब फरीद खान साहब है। मैं बस 2 मिनट लूँगा कि अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी कि अफराद के हाथों में है के मुकद्दर का सितारा है। वो अपने आप में एक अंजुमन है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने आगे किसी जगह और एक ये शेर कहा था कि फर्क कायम है रब्ते मिल्लत से, तन्हा कुछ भी नहीं। फर्क कायम है रब्ते मिल्लत से, तन्हा कुछ भी नहीं। मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ भी नहीं। आइए इन अल्लामा इकबाल के खूबसूरत अशार के साथ मैं दावत देने जा रहा हूँ मीरे कारवा, जो उर्दू कारवा की रहबरी फरमा रहे। उर्दू के लिए एक ऐसी इस्लामी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। मैं जनाब फरीद खान साहब से दरखास्त करना चाहूँगा कि वो आए और अपना इजहार ख्याल फरमाएं। जोरदार तालियां हो जाइए और इस अजीम शख्सियत का एहसास करें। सैयदा तबस्सुम साहिबा और मंजूर नाडकर सर से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो फरीद खान साहब का जो है इस्तकबाल फरमाएं, एजाज फरमाएं। तमाम सामईन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो तालियां बजाए। फरीद खान साहब जो है तालीमी शोबों में, अच्छे हिकों में बहुत अच्छा उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा कदम है। सदरे तकरीब दायत पर तशरीफ फरमा मौजूद हजरात और हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। सबसे पहले तो मंजूर नाडकर साहब और तबस्सुम नाडकर साहिबा को 3 चीज़ों की यके बाद डिग्री मुबारकबाद। पिछले दिनों तबस्सुम नाडकर साहिबा को एक बड़े इदारे की जानिब से जो है एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई है और उस डिग्री मिलने के बाद मैं समझता हूँ मुंबई में पहला प्रोग्राम है तो जिसमें वो मतलब प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर की हैसियत से या इस मौके पर वो मौजूद है, तो उसको बहुत बहुत मुबारकबाद। फिर इकबाल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के क़याम पर बहुत मुबारकबाद और कलियां एहसास की इजरा के मौके पर जो है आपको बहुत मुबारकबाद। और मैं समझता हूँ कि उर्दू कारवां के लिए ये फख्र की बात है कि वो हमारी मजलिस आमिला की रुकन है, एक सीनियर शायरा। हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, हमारे नायब सदर शोएब इफ्ती साहब यहाँ पर मौजूद है और सायरा खान साहिबा हमारी जो फाउंडर हमारी साथी है मजलिस आमिला की, ट्रेजरर है उर्दू कारवां की। और हम लोग ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि जब हम लोग प्रोग्राम करें तो उसको जो है मुख्तलिफ किस्म के भी प्रोग्राम हो, रिवायती नहीं हो कि जो हमेशा से होते चले आ रहे हैं, और उसमें खास तौर पर कैंपस बेस्ड प्रोग्राम हो। और तलबा को जैसे कि तबस्सुम नाडकर साहिबा ने बताया कि ये जो तंजीम बनाई है वो एक कोशिश है इस बात की कि ये उर्दू के जो लोग हैं, जो बहुत से अहम चेहरे यहाँ पर पाए जाते हैं, जो रात दिन उर्दू के फिक्र में जो है परेशान होते हैं, प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है जितनी मेहनत करते हैं उतना उसका नतीजा जो है नजर नहीं आता। तो हम तमाम लोगों को, हम देखिए सारे लोग जो इस कारवाने या कबीले उर्दू में है, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से बुग़्ज़ और बैर ना रखें
होती है, इंसान है, हम लोग भी, शैतान सबके साथ लगा हुआ होता है। तो ये होता है कि आपस में भी कभी कभी रंजिशें हो जाती हैं, दूसरी तंजीमों से भी रंजिशें हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजी के गलबे ने सारी वर्नाकुलर मीडियम स्कूलों का हाल आप देख लीजिए कि क्या है। ये तो मैं अहले कोकण को सलाम करता हूँ, यहाँ पर अहले कोकण हजरात की अक्सरियत है कि मुंबई जहाँ खत्म होता है वहां कोकण शुरू होता है, और उनकी कोशिशों से कि यहाँ पर जो है मुंबई और कोकण के कोकण पट्टी के तवील जो है रकबे में जा बजा जो है उर्दू मीडियम स्कूलों और कॉलेजेस का जाल बिछा हुआ है, और यहाँ पर मुंबई शहर में भी उर्दू से वाबस्ता सरगर्मियों में अहले कोकण जो है हमेशा पेश नजर आते हैं। और यहाँ पर उर्दू कारवां के मौके की बात है, इसलिए आपको बता दूं कि हमारा 7वां अशरे उर्दू जो है शुरू होने जा रहा है उर्दू कारवां का। पहले साल 2017 में जब उर्दू कारवां की बुनियाद पड़ी और पहला अशरे उर्दू हुआ, तो लोगों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई 10 दिन मुसलसल 10 दिन तक के 10 प्रोग्राम कर सकती है, वो भी एक जगह एक हॉल में नहीं, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग कैंपस में, अलग मुकामात पर। तो लोगों ने सोचा था कि शायद ये 1-2 साल के बाद ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन भी जो है हमारे जज्बात को सर्द ना कर सका। हमने लॉकडाउन में भी ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए जो है तलबा को, असातिज़ा को और आप जैसे जो मुहिब्बान उर्दू को जो है एक साथ जोड़ने की कोशिश की और सारे प्रोग्राम ऑनलाइन किए। और पिछले साल से फिर वापस जो है जब नॉर्मल हालात हुए तो फिर प्रोग्राम होने लगा। तो इस मरतबा ये प्रोग्राम जो है वो 28 नवंबर को मंगल के रोज जो है खिलाफत हाउस में उसका इफ्तिताही सेशन होगा सुबह में 11 बजे, और बहुत सारे प्रोग्राम है। और उसका इफ्तिताही सेशन भी खिलाफत हाउस में 11 दिसंबर को दोपहर में 2 बजे होगा। और एक अहम प्रोग्राम उसमें मुशायरा भी है, जो सालाना मुशायरा होता है वो अगले शनिचर 2 दिसंबर को शाम में 6:30 बजे इस्लाम जिमखाना पर उसका इनाकाद होगा। और बहुत सारे शोरे कराम यहाँ डायस से लेकर जो है वहाँ नीचे हाजरीन में मौजूद हैं। शोएब इब्जी साहब हमारे जो मोहसिन साहिब, ये 2 ब्रदरान हमारे मुशायरे के मामला देख रहे हैं। तो जो शायर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं जिनको उन्होंने रुजू किया है, एक बार फिर मैं दरखास्त करता हूँ डेट को जो है वो वापस से ब्लॉक कर लें। और मुजीब खान साहब यहाँ बैठे हैं हमारे, आप उसमें एक ड्रामे का भी मुकाबला है जिसमें आप जो है बतौर मेहमान खुसूसी जो है शिरकत करेंगे। तो उर्दू कारवां ने कोशिश की है कि उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ पर मबनी प्रोग्राम हो, और स्कूल के सतह से लेकर जो है वो PhD के सतह के तलबा के लिए प्रोग्राम हो। और यही वजह है कि हमारे प्रोग्राम उसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। और ऑनलाइन मुकाबले में हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों को जो है वो जोड़ने का एक मौका मिल जाता है तलबा को हिस्सा लेने का। तो हमने 2 प्रोग्राम इस बार भी ऑनलाइन रखे, मुकाबले हैं, एक अफसाना गोई का मुकाबला है और एक मकाला निगारी का मुकाबला है जो कुल महाराष्ट्र की सतह पर होगा। और बाकी मुकाबले यही मुंबई, मुंब्रा, थाना, कल्याण, भिवंडी इस सतह के हैं, ताकि यहाँ की तलबा या असातिज़ा जो है वो सफर करके जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ बआसानी पहुंच सके। तो मैं तबस्सुम नाटकर साहिबा को एक अरसे से जानता हूँ, और जब से उनको जानता हूँ मैंने उनको बहुत मुतहरिक देखा है। बनात से भी वो जो खवातीन की जो है वो निसाई तंजीम है उससे भी वाबस्ता है। और हमेशा से अदबी सरगर्मियों में मैंने उनको इतना सफर करते देखा है, ये मजदूर भाई के सपोर्ट के बगैर और इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं है। कई सफर में वो साथ में होते हैं, और पूरे खानदान का वाकई जब तक के जो है वो हिमायत और अमली सपोर्ट हासिल ना हो, वरना लोग कहने को तो बहुत सारे बातें कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो उर्दू शायरी भी मर्दोजन मसावत की बहुत सारी बातें करती है, लेकिन जहाँ अपने ही घर में जब चिराग रोशन करने की बात आती है, अपने घर में किसी खातून खाना को जो है उसके अंदर अगर सलाहियत है किसी भी किसी की उर्दू के कॉज के लिए या किसी और समाजी कॉज के लिए, तारीखी कॉज के लिए, तो मैंने लोगों को जो है दोहरा मेयार अपनाते हुए देखा है। लेकिन मजदूर भाई और उनके अहले खाना इस किस्म के नहीं है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये काबिल तकलीद घराना है। और रही बात तबस्सुम नाटकर साहिबा ने कहा कि वो कई बेटियां हैं आपके वालिद की, इकबाल साहब मरहूम की, लेकिन उन्होंने ये काम किया, तो वाकई आप जो है सैयद सादात घराने से सैयदों का जो है वो नस्ल जो है
ظاہر سی بات ہے جو اہل بیت کا گھرانہ یہ جو ہے وہ جناب سیدہ کی نسل سے، ایک بیٹی کی نسل سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چل رہی ہے، تو یہ اس کی مثال ہے کہ پھر ایک بیٹی نے جو ہے اپنے والد کا نام زندہ رکھا اور ایک صدقہ جاریہ ایک جاری کیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ تھے علی جناب فرید خان صاحب. مجھے 4 مصرے یاد آتے ہیں کہ میں فرید خان صاحب کی نظر کر رہا ہوں. یہ 4 مصرے کہ میں سرابوں کو سمندر تو نہیں کہہ سکتا، میں سرابوں کو سمندر تو نہیں کہہ سکتا، قد کی اونچائی کو عنبر تو نہیں کہہ سکتا، قد کی اونچائی کو عنبر تو نہیں کہہ سکتا، لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہے پستی کو عروج، میں زمانے کے برابر تو نہیں کہہ سکتا. آئیے حضرات، اب یہاں پر ہم ہمارے درمیان جو معزز مہمانان خصوصی اور دیگر تنظیموں کے اراکین موجود ہیں ان کے اعزاز کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے میں منظور ناڑکر سر اور سیدہ تبسم صاحبہ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے درمیان جو آج کی اس مجلس کی روح رواں جناب حسن چوکلے سر، ان کا اعزاز و استقبال فرمائیں. ان کا اعزاز کرنا میں سبھی سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ایک لمحے کے لیے اس عظیم شخصیت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ادب، تعلیم اور سماج کے لیے وقف کی ہے. ہمیں ایسے بزرگوں کی قدردانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سید اقبال احمد کے نام سے بھی ایوارڈ ہے. بے شک، ابا کے نام سے بھی بالکل. انہیں یہ سید اقبال مرحوم صاحب کے نام سے یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے بیسٹ ایجوکیشنلسٹ کے طور پر. اسی کے ساتھ میں تبسم صاحبہ اور منظور سر سے ہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ دوسری ایک عظیم شخصیت مجیب خان سر، ان کا اعزاز فرمائیں، ان کی تہنیت فرمائیں. سیدہ تبسم صاحبہ اور منظور ناڑکر کے ساتھ میں عمر ناڑکر سر، ان کو بھی رحمت دینا چاہوں گا کہ وہ بھی آئے، اور رؤف فضلدار سر، ان کا اعزاز و اکرام فرمائیں. عمر ناڑکر صاحب دونوں کو جانا ہے. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ فضلدار سر سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے اور ہم تمام کے سامنے مرحوم سید اقبال سر اور سیدہ تبسم صاحبہ اور ان کی پرانی یادیں جو ہے ان کے گلدستے کی جو ہے خوشبو کو ہم تمام کو جو ہے یہاں پر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی، آداب. آج کا اجتماع قلب مصطفیٰ محبتوں کی امانتوں کے دین فروزہ ہے. آئیے آج ان خوشیوں کو آپس میں بانٹیں اور اشارت انگیز لمحوں کا اجرا کریں. یہ زندگی جو پروردگار کی دی ہوئی امانت ہے، اس کا حق ادا کریں. فہم
बसारत के साथ अपनायत की सीख पर चहकते महकते ताल्लुकात को फरोग दी। मैं आप सबों का नफ्स वस्फतों के साथ शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे गुफ्तगू का मौका दिया है। आप सभी जानते हैं आज तबस्सुम नारकर के साहिबा की शायरी मजमुए की रस्म इजरा है। हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके हौसलों की दाद दें, इनके इजरा को शाबाशी दें, इनके कारनामों को सलाम करें और इनका एजाज और इकराम करें। आज अगर इनके वालिद मोहतरम सैयद इकबाल सर मौजूद होते तो इस बज़्म की रौनक कुछ और ही होती। चला गया जहां से वो मिसाल बन के रह गया। वो अमल के पासदार थे, बड़े वफाशवास थे। उरूज योग मिला, इन्हें कमाल बन के रह गया। ऐसा कहां से लाए कि तुझसा कहे जिसे। अल्लाह रहमत बरसाए अपने पाक बंदे पर। दुनिया फानी में तो बेशुमार बंदे आए हैं और अपनी उम्र मुतय्यन पूरी करके रुखसत सफर बांध लेते हैं। जाने वाले अपने कारनामों की दास्तानें और यादें छोड़कर जाते हैं। बाज लोगों को चंद महीनों और सालों के बाद लोग भूल जाते हैं और कुछ की यादें एक अरसे बाकी रहती हैं। बाद अपने कारनामों की वजह से नाकाबिले फरामोश बन जाते हैं। उनका फैल किसी न किसी शक्ल में जारी रहता है। ये लाफानी शख्सियत होती है। यकीनन मरहूम इकबाल सर ऐसी ही शख्सियत के हामिल थे। उन्होंने अपने खूने जिगर से जो चिराग जलाए, उन चिरागों से नए चिराग रोशन होते रहेंगे जो इन्हें सदा जिंदा रखेंगे। इकबाल सर 1959 में मैसूर से नौकरी की तलाश में बंबई आए। उनकी मुलाकात हमारे मरहूम चाचा अब्दुल गनी फैजदार साहब से हॉस्टल में हुई, जिनका ऊंचा कद, चेहरा गोल, लबों पर मीठे बोल, खूबसूरत नाक, जबान बेबाक, दूर तक पेशानी, फारिगुल बाल होने की निशानी, आंखों में चमक, चेहरे पे जाहियत की धमक, जिस्म पर सफेद लिबास। हर वक्त हमने उनको सफेद लिबास पहनते ही देखा है। कभी उन्होंने कलर के ड्रेसेस कभी नहीं पहने। दिल में कौम का एहसास, जोश फसाद व शीरी मकार, नर्म दम गुफ्तगू, गर्म दम जुस्तजू, खनकती आवाज के जादूगर, इतनी सारी सिफात वाले अजीम शख्स को मेरे चचा कैसे छोड़ते। उन्हें लेकर वहूर आए और फजरदार स्कूल के सुपरवाइजर बनाए। उनके आने से एक तरह स्कूल तरक्कियों की मंजिलों को याद करने लगी, तो दूसरी तरफ उनको कोकन की मिट्टी और हवा रास आई और वो कोकनी बन गई। इनकी शख्सियत का जायजा लें तो पता चलेगा कि वो एक ऐसे समंदर से थे जिनके आगोश में न जाने कितनी दरियाओं ने रवानी सीखी। उनके मुफीद मशवरे स्कूल की इंतजामी सतहों पर रोशनी की लकीर की तरह हैं। स्कूल में उनका डिसिप्लिन बहुत ही सख्त था। वक्त के बहुत ही पाबंद थे। उनकी रफीक हयात नीम फजलदार स्कूल में सर्विस करती थी और उसी जमाने में भी सैयदा तबस्सुम जी भी और उनके सारे बहनें
स्कूल में जेर तालीम थे और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो इकबाल सर ने जो सफर तालीम बहूर से शुरू किया था, आज उसकी हिम्मत अफजाई हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहूर में 16 साल की सर्विस के बाद सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब से वापस आते थे तो वो स्कूल में जरूर विजिट करते थे और अपने मुफीद मशवरे छोड़ देते थे। उनके दौर में एसएससी में हायर मैथमेटिक्स के पढ़ाते थे, मैथ्स के बेहतरीन टीचर थे। उनके सामने मैथ्स की किताब क्या, मुश्किल हिसाब क्या, आप तो आप थे, आपका जवाब क्या। वो मेरे उस्ताद मोहतरम भी रह चुके हैं। मरहूम अब्दुल गनी फजलदार साहब आपको बहुत चाहते थे और उनकी शादी खुद अपनी निगरानी में ही की थी। हम सब दुआगो हैं, अल्लाह उनके खिदमात को कबूल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उनके मरातिब बुलंद करे। हम तो साहिब से चले इतिहास का तोहफा लेकर, अब जमाना हमें ढूंढा करे दरिया लेकर। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियों थी उन्हें जाने वाले में। आखिर में तबस्सुम के लिए मैं दुआ करता हूँ और उनके लिए एक शायर कहकर अपनी जगह रहे। कदम कदम पे कदम कदम पर मुसर्रत रोशनी पे बहार, मेरी दुआ है तुमको शादों रखे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। एक अजीम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, डॉक्टर कासिम इमाम सर। मैं जनाब मंजूर नारकर सर और सैयदा तबस्सुम साहिबा से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आपका एजाज़ और इस्तकबाल फरमाएं। जोरदार तालियां बजाइए। ये एक ऐसी शख्सियत है जो उर्दू अदब की खिदमत पिछले कई दहाइयों से फरमा रही है और न जाने कितने नौ मश्क शोरा इनके इल्मोपन से जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कासिम इमाम सर को। मैं मंजूर नारकर सर से ही दरखास्त करना चाहूँगा कि वो बावा चौगले सर हमारे दरमियान मौजूद है। फाउंडेशन का है, इसके भाई और वो बाबा भाई भी इसका है, लेकिन राहुल मैं क्योंकि वक्त जो है बहुत मुख्तसर है, कासिम सर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा इन दो शेर के साथ कि अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू देते, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू देते, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे, मेरे मालिक अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समुंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू। जनाब डॉक्टर कासिम इमाम सर। सदर बावखार चोपले साहब, मुजीब खान साहब, रऊफ साहब,
और साहिब एजाज साहिब किताब सैयदा तबस्सुम साहिबा, जितने इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं सब आज इस कदर पुरनूर और ऐसे खूबसूरत लग रहे हैं जैसे किसी बहुत बावकार और बहुत रोशन तकरीब में आए। सबके चेहरे खिले हुए हैं और सब अपने आप में बहुत मशहूर लग रहा है। ऐसा किताब के जश्न में बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे दो बातें कहनी थी, वो मैंने जो किताब मुझे दी गई थी मैंने उसने उस सफ़े को मोड़ दिया था कि मैं इस पर बात करूंगा। तबस्सुम साहिबा जाते जाते वो किताब ले गई। मेरा काफी आसान, मैं शुक्र मना रहा था कि आपका वक्त बच गया। ऐसा है कि बम्बई वालों के पास वक्त कम रहता है, ऐसा लोग कहते हैं, और खासतौर पर जो लोग बाहर से आते हैं वो कहते हैं। जबकि हमारा मानना यह है कि बाहर वालों के पास कम वक्त होता है, वो अपने वक्त को थोड़ा थोड़ा बांटते जाते हैं चोगले साहब कि दोपहर में यहाँ, शाम में वहाँ, रात में वहाँ। और हमारा सवाल मेरा और फारूक सैयद का उन लोगों में होता है जो सुबह भी उनके साथ, दोपहर भी उनके साथ, रात में उनके साथ उस प्रोग्राम में शामिल है। तबस्सुम को मैं इसलिए भी ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमने अब तक सुना था, उर्दू का एक मशहूर मुहावरा है, एक पंथ दो काज। पहली बार देख रहे हैं कि एक पंथ और कई काज, चार है। आप थोड़ा देर से आए, चौथे का अनाउंस हो गया। सबसे बड़ा काम इकबाल एजुकेशन सोसाइटी के इनेकाद पर उसका जश्न करना, क्योंकि आज सूरत हाल ये है कि खासतौर पर हम तो अपने आप को कोकनी ही कहते हैं, इसलिए कि हमने शमसी साहब की आंखों से, सलीम अलवारी साहब की आंखों से, हसन भाई की आंखों से कोकन को देखा है। जब हम फजलदार स्कूल जाया करते थे वहाँ गुलाम पटेल साहब बड़े मतलब खातिर नवाजी और हमारे मेहमान, और रशीद आसान बोलकर एक शायर थे वहाँ हम अक्सर जाया करते थे। और मेरा ख्याल है हमने इकबाल साहब को देखा भी होगा शायद, क्योंकि हम 80-85 की बात करते हैं। और कोकन की एक तारीख ये भी है कि कोकन में जो दूसरी रियासतों से दुल्हने ब्याह के लेकर आया जाता है, वो आकर कोकन में बहुत काम करती है। मुझे नाम याद है, सुरेखा एक नाम था, नदीम दादरकर की वाइफ। दूरदर्शन जब इजाद हुआ तो सबसे पहले खातून जो अनाउंसमेंट की बाहर कोकन का। नीलम फजल मास्टर आप देख लें, सफिया कुरबी साहिबा आप देखें। हमारे शहर में अगर आप देखें तो मुश्ताक अंतुले साहब की वाइफ जो है नीलम अंतुले की शायरा है। और खुशकिस्मती ये देखें कि तबस्सुम एक ऐसी शायरा है जिसने पूरे कोकन के अदबी माहौल को जोड़ने की कोशिश की। शेर कह देना, अफसाने लिखना, ड्रामा लिखना अपने आप में कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है, लेकिन इन कामों के लिए लोगों को जमा करके उनका एजाज करना, उनको बर्दियाई करना, ये बड़ा काम है जो पहली बार कोकन की किसी नौजवान खातून शायरा ने किया है। ये बात इसलिए भी जरूरी है कि आज अगर आप देखें, बल्दी जमा खावर साहब एक जमाने में बड़ा अहम अशरफ कमानी, महल मैसराई, याकूब राय, ये सारे लोगों वो है, अख्तर राय, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोकन में अदब की तारीफ को मुरतब किया। लेकिन अगर आप उसके बाद देखें तो आपको बहुत खाल नाम सुनने को और देखने को मिले। एक जमाने में जर्मन प्रकाश साहब भी शेर कहते थे, पासपोर्ट के जो थे बहुत मशहूर, और ऐसे कई लोग हैं। और खासतौर पे अली शमसी साहब ने अदबी जलसों के इलाकात के जरिए कोकन की शमूलियत को और बासर बनाया। रेहाना आपा, रेहाना उनसे जो थी, रेहाना अहमद जो है, उन्होंने ऐसी महफिलों को वफा करके बहुत ज्यादा मौसर रोल अदा किया। लेकिन आज नए जमाने में जो काम इकबाल फाउंडेशन के जरिए जो काम सोच रही है मंजूर नागकर साहब के साथ मिलकर,
शौहर के साथ मिलकर काम जो किया जाता है वो हर जमाने में कामयाब होता है, क्योंकि अगर वो साथ में तो काम ही नहीं कर पाएगी। ये सही कहा किसी ने कि लोग, फरीद खान ने कहा कि लोग जो है जलसों में ये बात कहते हैं लेकिन घर से क्या गुजरती है ये सोच पाते हैं। लेकिन आप पर अच्छी गुजरती है इसलिए कि आपकी बहू भी शौक रखती है, बेटा भी रखता है, दामाद भी रखता है, छोटे छोटे बच्चे जो आज नाक और हम पढ़ रहे थे वो भी शौक रखते हैं। इसका मतलब ये कि आपको आपका खानदान जो है बहुत ज्यादा आपकी प्रतिक्रिया करता है। घर से इज्जत मिलेगी तो ही वो समाज और बाहर मार्केट में मकाम बना सकता है, ऐसा हमारा। चलिए बात को मुख्तसर करते कि मैं नसरी नजीब से पहले रूहे तबस्सुम नाम का इनका एक गजलों का मजमूआ था। कई कश्तियों में सवार होती है, इसके लिए कोई कश्ती बहुत मजबूती से दिखाई नहीं देती, लेकिन ये नसरी और आजाद नस्लों का जो मजमूआ मेरे सामने उसकी नस्लें वाकई दिल को इसलिए छू रही है, दिल से निकली हुई मालूम रहती है। इसमें कोई क्राफ्टिंग नहीं, इसमें कोई इसलाह नहीं है, इसमें कोई कमी नजर नहीं आती, इसमें कोई जबान की जादूगरी नहीं, इसमें कोई बयान का कमाल नहीं, बल्कि जो इन्होंने महसूस किया वही इन्होंने पेश किया। मैं इसके लिए इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। तुझे ही देख के औकात भी बदलते हैं, तुझे ही देख के औकात ही बदलते हैं, घड़ी की दुनिया लम्हात ही बदलते हैं, सब जा चुके हैं बस मुझे आंखें को खोल दे, कब तक मैं इंतजार करूं आपको बोल दे। शेर का वजन, शायरी, ये हमारे कमर सिद्दीकी साहब बैठे हैं, ये मुस्कुराएंगे तो मैं समझूंगा कि क्या है, लेकिन जो दिल के एहसास और दिल में जो कुछ तबस्सुम में महसूस किया उससे मैंने उन्हें पेश किया। मैं इसके लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक खास बात मुझे फारूक सईद ने बताई कि आज वो अपने सिलसिले से जुड़े उन लोगों का एहसान भी करने जा रहे हैं जो अदब का काम कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये चौथा काम जो ये भी बहुत बड़ा काम है कि वो लोग जो ज़बान और अदब की खिदमत कर रहे हैं उनकी सताई खुद अपने आप में बहुत बड़ा कमाल है। मैं आपके लिए दुआ करूं कि इकबाल फाउंडेशन, और मैं फिर भी जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि आप खासतौर पर हमारी जो बच्चियां शेर और अदब का शौक रखती हैं और कोकन से जिनका ताल्लुक है उनके लिए खासतौर पर एक अलग लीग बना के काम करना चाहिए। हम फेसबुक के लोग हैं, हमारी छोटे मोटे लोग हैं, जाने पहचाने, हम महसूस करते हैं कि कोकन की सरजमी में अभी निसाई अदब की बड़ी आवाजें और आहट से सुनाई देती। आप जैसे लोगों को बढ़कर उनको लबैक करते हैं, उनकी तरबियत करनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने, मैं तो बस इस ख्याल से आया था, किसी ने कहा है कि क्या कहा गया, मैं मेजबान था, उनकी नवाजिशों ने तो हैरान कर दिया। आजकल उल्टा हो गया, फारूक को देख के सलीम अमरान साहब बच गया, इस जमाने में वो मुझे देख कर गिर पड़ता था। ये जमाना बदलता है कि उनकी नवाजिशों ने तो हैरान कर दिया, उनकी नवाजिशों ने तो हैरान कर दिया, मैं मेजबान था, मुझे मेहमान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। मैं सना नाडकर साहिबा उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो हमारे दरमियान मुशीर अंसारी सर मौजूद हैं जो पिछले कई दहाइयों से उर्दू अदब की खिदमत फरमा रहे हैं। अल्लाह उनको सेहत और उम्र दराज़ी अता फरमाए। जो उर्दू की ये अथक मेहनत कर रहे हैं। सना उर्दू आंगन जो है, इनका रिसाला जो है मकबूल है पूरे हिंदुस्तान भर में। जोरदार तालियों के साथ आपका इस्तकबाल फरमाएं। मैं फरहा नाडकर से गुजारिश करना चाहूंगा कि अखलाक नागुफ्ते सर जो दानिश एजुकेशन सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं उनका एजाज फरमाएं। अखलाक नागुफ्ते सर दानिश एजुकेशनल सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं आप। फरहा नाडकर साहिबा। स्टार न्यूज दिल्ली का एक न्यूज चैनल है, नौशाद उस्मानी साहब जिसके चीफ एडिटर है।
अरे इधर इस तरफ देखो ना, और इस सैयदा तरफ तबस्सुम साहिबा भी उसके इधर सामने ही देखो। होशे खालगी वाटफाल की सदर है। हाँ एडिटर ऐसा, है। हाँ ये सही है। उन्होंने अपनी तरफ से उनके बिहाफ में हाफिज मोहम्मद रिहान साहब को भेजा है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो यहाँ तशरीफ ले आए। मैं जाकिर खान साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आपका एजाज फरमाएं। एक रिसाला पिछले कई सालों से नौशाद उस्मानी सर की जानिब से रेहान सर हमारे दरमियान जाकिर सर आपका एजाज फरमा रहे हैं। एक मकबूल व मारूफ रिसाला गुल गुप्ते जो पिछले कई सालों से 26 सालों से पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में मकबूल है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फारूक सईद साहब को। आप अदब की किताबों की खिदमत फरमा रहे हैं। मैं फारूक सईद साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आए और हसन चौगले सर से गुजारिश करना चाहूँगा, आपको रहमत देना चाहूँगा कि वो इस उर्दू के ऐसे खादिम की तहनीत फरमाए। मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब के लिए फारूक सईद साहब की कुर्बानियाँ नई नस्ल के लिए जो है बहुत मुफीद है, सरागे राह है। मैं कासिम चौगले सर उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जाकिर सर का एजाज फरमाएं। कासिम चौगले सर। मैं अजहर शेख सर से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो जाकिर खान सर जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए काफी मेहनतें की है। हमारे दरमियान साबू सिद्दीक जो पिछले कई दहाइयों से तालीमी खिदमत अंजाम दे रहा है ये इदारा, न जाने कितने सैकड़ों हजारों लाखों बच्चे जो है मैं सैयदा तबस्सुम मंजूर साहिबा और इसी के साथ साथ कौमी शिक्षक उर्दू संघ भारत के महाराष्ट्र की ख्वातीन की शोबे सदर कनीज फातिमा साहिबा, इन दोनों साहिबा से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो आए और कुरैशी अब्दुल कदीर सर प्रिंसिपल साबू सिद्दीक इनके बिहाफ में हमारे यहाँ पर जो है माहिर सर जो है मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो आए और वो जो है उनकी जानिब से उनके बिहाफ पे जो है एजाज कबूल फरमाए। ये साबू सिद्दीक प्रिंसिपल, कुरैशी अब्दुल कलीम सर, कुरैशी सर। सैयदा तबस्सुम साहिबा और कनीज फातिमा साहिबा दोनों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा
कौमी शिक्षक कर्मचारी संघ भारत जी वैसे कनीस फातिमा साहिबा से दरखास्त करना चाहूंगा कि वो सैयदा तबस्सुम नाडकर साहिबा का एजाज करवाएं। मैं अजहर शेख सर से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो सगीब अलवारी साहब इनका एजाज फरमाएं। कोकण कम्युनिटी फोरम, इनकी तंजीम है कोकण कम्युनिटी फोरम हमारी। एक मिनट साथ में आंसर। अरे क्या बात है, एक मिनट ऐसे यहाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक मिनट ऐसे 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 बहुत अच्छा। कमल मांडे कमल मांडेकर सर, इसको लगना चाहिए लोकल टैलेंट फोरम, कोकण टैलेंट फोरम, उसके लिए दिया जा रहा है कमल मांडे। कोकण कल्चरल फाउंडेशन, कोकण कल्चरल फाउंडेशन। आबा भी है। और कमल भाई इकडे बघा, मंजूर भाई थोड़ा एक मिनट ऐसे रुको थोड़ा और एक मिनट। बहुत अच्छा, इमरान अली साहब का एजाज किया जाए। अजहर यांचं का तुमचं समजवायचं का तुमचं? आप तुमने पहन के बैठो। हाँ जी बिल्कुल। अबू बकर सिद्दीकी साहब का एजाज। जी